Yes, good morning, everyone. We are waiting for our resource person to join his. Yes, good morning, all the participants. While we are waiting for our resource person to join, can you all switch on our camera so that we can have a small photo shoot right now? I request all the participants to switch on their cameras as we are waiting for the TCS to join. I request Ashutosh sir to please take some screenshots. I think there is some issue in the volume. I need to check it once again. Morning, friends. Yes, good morning, sir. Good morning, sir. How are you, Hello, sir? am I audible? Yes, sir, you're audible. Good morning, sir. Good morning. I am sorry to have been late. It's all right, sir. Other participants are also joining. All have not yet joined. We're waiting for all of them to join. They can afford to be late. A teacher can't afford to be late. All right. I think most of the participants have joined. So let's start the proceedings of the day. If you want to understand today, you have to search yesterday. Citing the sources used in our research work is as important as the work in itself. A very good morning and warm welcome to all the dignitaries present here. We have reached day 4 of our FDP on research methodology, and we are going to have a deeper insight on the topic citing the works of someone else in our thesis. So, what to do and what not to do, we will learn from Professor Sushil Sharma, sir. So, I cordially invite you, sir, to please address the gathering. Over to you, sir. Dr. Sushil Sharma, sir, please. Thank you. Thank you so much, Dr. Pinky. I'm sure all of you have got the topic for today. This is MLA style. Now, what does this MLA stand for? Anyone? No. What does this MLA stand for? Many of you are PhD holders. Many of you are aspirants to join PhDs. This is a member of Legislative Assembly. Am I referring to the style of Modern the member language of association. Legislative Assembly or something else? This is Hello? the Modern Language Association. Yes, Modern Language Association of America. Are you aware of any language association in India? Say yes or Just no. If you are aware, then give me the names. If you are not aware, then simply say no, we are not aware. Sir, as far as I can think, there is one more APA style also that we have heard while doing our research. We got to know there was I, initially it was something. Yes, sir. so far, I have not come to that style. So far, I am simply talking about associations. I'll come to that later. My question is, you see, I asked you one simple question. What does ML common abbreviation for member of Legislative Assembly? But I do not mean that MLA here. I mean Modern Language Association, the name that was given by Dr. Pinky Chuk, but I said this is incomplete name. This is popularly known as Modern Language Association, but the full name happens to be Modern Language Association of America. The next question that comes out of it is, are you aware of any other association of language teachers?
whether in India or anywhere else. In India, this association is known as Indian Association. ELTAI. Hello, There is one more association as I can think. This is ELTAI, English Language Association Teacher something. I have heard about this association. If you're talking about English language. Dr. Ghanshyam of Bilaspur is the Indian coordinator. Hmm, English Language Teaching Association of India, right? But that is in India. let's see, let's There is see. there is another association which is older than the association of Dr. Ghanshyam, hmm, Ghanshyam Iyengar. The name of that association happens to be the Association of English Studies in India. This association was started in the pre-independent times by the teachers of Allahabad University and Lucknow University, basically. And then uh, they started having their conferences all over the country. And generally, these conferences were held in the last week of December because that used to be the time for closure of the colleges or closure of the universities. Winter break used to be there. Hmm? And the first chairperson of that conference happened to be Professor Jha, Amarnath Jha. Then S.C. Dev, and Professor Siddhant of Lucknow. So they used to be president and secretary for quite some time. Hmm. For 2 years, this association has not met because of COVID. Hmm. The association also got defunct in the some of the intervening periods. Why am I asking this question? I'm asking this question because if the Language Association of America could become so much powerful that a teacher has to talk about one of its publications, and most of the students who are doing their research, they are supposed to understand this and are supposed to follow its guidelines. Why are the associations of other countries not able to do a similar work, right? Why do we simply accept the superiority of American publications? That is the question that I'm trying to raise. And I said that this Indian Association of English Studies that was started in the pre-British days. So in the pre-independent days, what was happening in the pre-independent days? Uh, in the pre-independent days, kindly give me a minute. Independent days. Yes, Hello. sir. I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are Uh, audible. in the pre-independent days, we were following English studies programs almost in every country, and there was a basic purpose why the program had been started by the British people. And naturally, most of us in those days, most of us means most of the senior scholars in this country, they were toeing the Britishers' line, the British line. And in Britain, this Oxford University and Cambridge University had already been there. And one association called the Association of Humanities used to be there. That Association of Humanities had also published this sort of a book, hmm, how to cite references, how to cite books, how to cite articles. So how come over the period of
America has gained superiority and British system has been relegated to position number two. Nobody even cares to know about the uh, cares to know about that humanities association. Although the association still exists and the association keeps on issuing different kinds of guidelines. As a matter of fact, there was a time when Oxford University professors were looked for in America. But of late, the paradigms have shifted. If you have a look at the teachers who are appointed in Oxford University or Cambridge University, a large number of them have had their training in America at some point of their academic career. Meaning thereby that as the global reputation, global political reputation of England uh, fell down, there was a decline even in the academic standards or academic reputation, if not standards, academic reputation. And as America, United States of America, grew in its power, its reputation in the field of academics also grew up. Today, this Modern Language Association of America is considered to be the largest association of language teachers all over the world, though there is hardly any country that does not have a language association. I, for example, refer to Indian Association of English Studies. Uh, in one of my speeches over there, as a matter of fact, the speech. The Linguistic Society of India. Hello, which Society of India? Linguistic Society of India. Linguistic Society of India is also there, yes, but linguistics people were also included here. Language teachers were included, but linguistics happens to be a specialized field, so therefore they said that language and linguistics, language and literature, they apart, and linguistics people who had specialized in linguistics, they started their own association. But this association of English teachers. So in one of my speeches, as a matter of fact, the speeches for the acceptance of an award that they had given me, Life Achievement Award, I made this point that if we are saying that we are post-colonial and we have to have our own identity, why don't we start working in this direction and start having our own style sheets? This association also brings out a journal. As most of the associations, they also bring out their journals. What is the journal that is issued by MLA Association, MLA of America? Any idea about that? This is known as PMLA, Publication of Modern Language Association of America. And this is considered to be the most prestigious journal of English studies all over the world. Its reputation is like the reputation of uh, reputation of nature in the field of sciences, right? I do not know of any professor in India whose books have either been reviewed in PMLA or he himself has reviewed books for PMLA or his publications or has contributed to that journal.
That simply shows that English studies in this country are considered to be derivative studies, and a large number of people hmm, all over the world also consider the reputation of Indian scholars of a very shady nature. This could come as a shock to some of you, hmm, because some of you have been fed on the notion that Indian scholars are really great. But what kind of reputation do they enjoy all over the world, hmm, or in the field of English studies proper? Now, this journal happens to be one of the most prestigious journals, and almost all the teachers or all the universities of America are the part of this association. Even when they are bringing out their different journals, they insist that whatever has been decided in this association has got to be implemented by them in their journal also. They insist on that. Meaning thereby that if you wish to publish in the American journals, what do you have to do? You have to learn the citation index of the MLA. So this becomes a mandatory thing only in the case you wish to publish in the American journals, right? Initially, there was some resistance. There is some resistance to this even now in some of the countries and in some of the journals. For example, the Journal of Humanities Association of England, they insist that the guidelines issued by them, they need to be followed. There are several journals that insist that the guidelines given by them at the end should be followed. But a majority of them and a large number of them have decided to just have one line. And what is that one line? We accept papers written in conformity with latest MLA style sheet. Okay. So, in case you wish to publish, you have to learn this style. In case you do not wish to publish, then there is no point in talking about this MLA style sheet. Now, what is the condition of India? The English, this English Teachers Association hmm, also brings out a journal on an annual basis. What are the guidelines over there for citation? There are no guidelines that have been mentioned on the journal. So it is almost a free for all field. Traditionally speaking, in India there are two schools. One school is for strict British standards, and Allahabad University happens to be a typical example of that. So much so that we were not in a position to change our syllabus up till recently. We could change our syllabus around, I think, 2018. This is 1821. Not 18. 2015. And our courses were largely British oriented courses. If we look at the prescribed courses, as I was saying the other day, most of the books that have been recommended are from the British authors. Not that they only know the subject matter, not
that they have the original point of view alone, but there is a natural bias, colonial mindset is the expression that is generally used for that. Americans challenged it in uh, during the British period. There was an insistence that we should not have doctorates, particularly at Allahabad University. The people who used to have doctorates, they were made fun of. Hmm? So most of the people, they simply were MAs. They took pride in the fact that they were good readers. And the last person, the last head of the department, who was simply an MA up till her retirement, was also around 2018. Since the UGC insisted that without PhD you will not be able to have your promotions, and the government wanted people to become to have a critical attitude, hmm, PhD was made a mandatory qualification with the view that you have to make them, give them critical insights, and they should know how to criticize the argument, how to find out the fault in the argument, and how to argue their cases. Now, since these British people left this country and they stopped giving grants through British Council, there was almost a crisis because the English teachers were not getting books, and particularly on the contemporary authors, the books used to be very costly. They were not available. Hmm? British Council started charging, raising its membership fees uh, on a constant basis. But the opening of American Research Center in Hyderabad came as came as a boon to most of the English teachers. This center in Hyderabad, they started giving free grants, grants freely, not free grants, but grants freely to be at the center. So an Indian uh, and even a South Asian could travel to Hyderabad on the money provided by the American government. They could study over there. So the arrangement was made for their stay, food and lodging, and all these people started reading those books. Some scholars used to be there who used to guide all these scholars who gathered from Southeast Asia. And the first book that was given to them over there was a sort of a pamphlet in about 50 pages. That pamphlet was known as MLA style sheet. For example, when I did my MPhil in 1983, I too was given that pamphlet of about 50 pages to study before I undertook research, meaning thereby that this Americanization of English studies took place in India after the opening of American Studies Research Center. Since books were being sent by them to the homes free of cost, there was no membership fees or little membership fees, and they were giving grants. So people from all over the country, they started going to ASRC, American Studies Research Center, and
instead of choosing British authors because there were no British books available, so a large number of them started doing research on American literature. And then the next step was that all these people they started saying that now these American studies in this country are well established, so you should also start having American literature in your courses. So earlier, say 10 papers of British literature used to be there. This American literature was introduced as an alternative paper, as a choice. Hmm? This is how the American studies started, and this is how the through American studies, this modern language association became important in this country. The field was open. The field was open because the Indian Association had not done any job. Till date, they have not done anything except doing the line of the great people, great within quotes. So earlier, the British people were great. Now the Americans were great for them, right? Whenever there was a doubt, so they'll simply say yes, no, yes, yes, this is also true, this is also true, this is American, this is British, let's accept it, let's accept both. But how can a journal accept an article based on PMLA guidelines or MLA guidelines and also on humanities guidelines? The book will appear or the journal will appear to be quite absurd in that case, because in one case one pattern has been followed in an article, and in another article another. So uniformity is expected in a journal. That uniformity generally is missing. So the unaccepted norm even in that Indian journal these days happens to be what? These days, this happens to be the MLA style sheet. And therefore, the insistence by most of the supervisors on this MLA handbook. And this MLA handbook, therefore, became a source of income for the Americans. So, almost every 2 3 years, they start revising it, or they revise it. Hmm? So this is a brief history of the American style sheet or Americanization of English studies in this country. Hmm? Kindly give me a minute. Let me change my position.
Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible? You're audible. Yes, Okay. Can you see the file that I'm sharing? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So currently, who is the president of this American association? MLA? Professor Judith Butler happens to be the president. She happens to be a feminist scholar. So the same Judith Butler happens to be the president. This association was founded in 1883, and its headquarters are located in New York. And Southern MLA Association, Northern American Association. There are several groups that are running, hmm, and they hold their conferences annually, which happen to be one of the prestigious associations and the conferences. Now, you can have a look at some of these books. Uh, Dr. Pinky Chugh was referring to this ninth edition of MLA Handbook. But this MLA Handbook happens to be only one of the publications. And as I was referring to the other day, this book happens to be a high school level book. MLA Handbook is a high school book in America, not the university book. And this MLA has also published another style manual and guide for scholarly publication. This happens to be the first book that I am showing, right? So ninth edition, before this ninth edition, this eighth edition was there. Before this eighth edition, seventh edition was there. Sixth edition was there. Fifth edition was there. So you can see the change. Eighth edition onward, this is called MLA Handbook, right? Before that, this was known as MLA Handbook for Writers of Research Papers. So there were several teachers in India who used to say, oh, this is not meant for PhD. This is meant for research papers only. They were right to some extent, but there were some other teachers who used to insist that whatever rules are applicable for a research paper should also be applicable for a thesis. So 7th edition, 6th edition, 5th edition, 4th edition, 3rd edition, right? Before this 3rd edition, this title was not there. MLA Handbook for Writers of Research Papers. Unfortunately, I could not locate the PDF copy of the earlier pamphlet. Otherwise, it is lying with me. As I told you that this was one of my MPhil textbooks, running just into about 50 pages, right? And in that pamphlet, this writers for research papers was not there. The words that were used over there were MLA style sheet, right? And because this was known as MLA style sheet, therefore, informally we have started saying that MLA style sheet has got to be used, right? But as Dr. Pinky Chugh was saying, this is not the only style sheet that is prevalent in America. There is another style sheet also that is prevalent over there, and this happens to be the Chicago Manual of Style. Chicago Manual of Style. So our teachers used to say either follow the Chicago Manual of Style or you follow this MLA handbook, right? And they used to teach us MLA handbook because this was quite easily available and this was quite small in size, while the Chicago Manual in 1980s, this used to be around 200 pages and this was not very easily available, right? So these are the two
textbooks in America, right, for the humanities subjects. Humanities over there, they simply mean related to languages basically, right? So this MLA handbook for the writers of research papers, or this Chicago manual, and this Chicago manual also has run into several editions, right? Then Dr. Pinky Chugh was saying that there also happens to be an APA style. Yes, of course, APA style happens to be there. But what is this APA? This APA stands for American Psychological Association. So once again, you can see the dominance of America over there, and whatever this APA style is there, that APA style has been adopted by most of the journals of social science discipline. Even many of the linguistics people, they have adopted this APA style. Why? Because they feel that this APA style is related with social sciences, and linguistics also considers itself to be a science, and not a subject of humanities. So many of the linguistics journals, they will ask you to write their papers, submit their papers to American Psychological Association style, APA style for short. So in the faculties of humanities, in the faculties of languages, in the faculties of social sciences, these are the two manuals that are considered to be the Bible for a Bible for all these citations. Now this ninth edition runs into 400 pages, right? This has been published in 2021 only, right? Only a month back. So a book of 50 pages has gone into 400 pages. I have showed you various these editions. The seventh edition of this book was about 200 pages, while the sixth edition was about 300 pages. So the number of pages also does not remain fixed, and they keep on deleting or adding material according to suit the needs. Now, why this change? There are several opinions. One opinion happens to be that they know how to market their things, and this has become a revenue generation source for them. But this revenue generation can also be done, can be done only when there is a reputation in the field, and people feel necessarily that they have to toe the line. So all those teachers in India who do not uh, encourage any sort of publication, or those who themselves do not know how to publish or have never cared to publish, particularly the senior teachers, hmm, they insist that all this is humbug, and whatever they feel like, you should be able to write them. You should be able to write your assignments, etc. But those people who wish to publish, who go into this field, they need to understand the niceties of all these things. Is that clear? Any questions? कोई सवाल जवाब नहीं है? इसके मायने ये Sir, so हुआ there is no any Indian style of research paper, मतलब no any Indian style till now, which is accepted. अभी तक कोई नहीं है. हेलो, व्हाट इज योर Yes, sir. क्वेश्चन? इंडियन सर अब तक स्टाइल है या नहीं है? सर अब तक मतलब कोई नहीं है ना, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था. हाँ, अभी कोई नहीं है. Yes, sir. अभी कोई नहीं है भाई. पूरे हिंदुस्तान के लिए कौन बनाएगा? और कम से कम अंग्रेजी के फील्ड में हम डिस्कशन तो कर रहे हैं इसके बारे में. हिंदी वाले, संस्कृत वाले, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं इसके बारे में.
जो मन में Yes, आता है, जैसे आता है वैसे वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम तो लाइन तो कर रहे हैं ना कोई किसी की। yes, sir. Yes, sir. हमारे पास वो किताब कम से कम अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी वालों के पास तो कुछ भी नहीं है, संस्कृत This is वालों के really पास तो कुछ। shocking. This is really shocking to know that they are not following any style of publication. This is really strange. Like we have Sanskrit and Hindi are our languages. We should have some fixed pattern to publish our stuff. So this is the first time that we are coming to know that they don't have any fixed pattern to follow. This is अरे really strange. उर्दू में और हालत खराब है, उर्दू और अरेबिक में और हालत Ah, खराब है। oh my God. This is really And India happens to be a country where the largest number of languages are spoken and used. किसी देश में 8th शेड्यूल जैसा शेड्यूल नहीं है, लिस्ट नहीं है 8th शेड्यूल जैसी, जहां पे उन्होंने 25-30 लैंग्वेजेस को उसमें शामिल करके कह दिया कि ये स्टेट लैंग्वेजेस हैं। और जो लैंग्वेजेस उस 8th शेड्यूल में नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो पढ़ाई जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं। But this should have been the job of English teachers or the job of language teachers. अब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है ऐसा जहाँ बात कर सकें सब। I think somebody should raise a voice like for this thing, because if we are like Hindustanis, so we should have some our own system, so some system to be our own, like we have अब मैं presented. बता रहा हूँ, अब भाई ये America ऐसी is Americans are justified, so because English is their language, they have forwarded this system, and the whole world is following MLM style of America नो नो only. So I think, yeah. ये फॉर्म से देखिए, दो चीजों में अंतर है। क्या अंतर है? They did not impose it. The government did not impose it. But Right? they set up standards. Some effort was made by the language teachers over there. हमें भी कुछ करना है इस देश के लिए। यहाँ तो एक प्रॉब्लम ही नहीं है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। समझ रहे हैं ना पिंकी जी आप इशू जो है? यहाँ तो आप so there is a change from below and there is a change from above. We are expecting a change from above. The American government did not do it. The American government did not interfere in this issue at all. अब हमारे यहाँ एक बॉडी है साहित्य अकेडमी, वो जर्नल भी अपना पब्लिश करते हैं, जो उसमें आर्टिकल छपते हैं उनको पैसा भी देते हैं, वो ये कर सकते हैं, लेकिन दैट वुड बी ए चेंज फ्रॉम द अबव। ठीक है? यहाँ तो कोई ये उससे कहें आप ठीक से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो कहता है सब कुछ पैसे ले लीजिए, जर्नल में वो पैसे लेके छाप देते हैं, आप भी छाप दीजिए। तो यहाँ तो पूरा मसला पैसे पे आके अटक जाता है। ठीक है? जर्नल है, वो पैसा Yes, लेके sir. छाप देते हैं, हम कुछ भी लिख दें। तो काम कौन करना चाहता है? यहाँ स्टैंडर्ड काम कोई करना ही नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहते उसके बारे में। स्टैंडर्ड काम के बारे में कोई बताना चाहे उसे सुनने But this वाले नहीं मिलते कि जी। this seems to be another topic for research today. I think after this session, we all need to research what is going on in Hindi and Sanskrit languages in India. I think we all will be searching. भाई आपको पिंकी जी, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि केवल अंग्रेजी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको अपने उत्तर अंग्रेजी में लिखने हैं। एमए इंग्लिश आप कर रहे हो, देन इन विच लैंग्वेज आर यू सपोज्ड टू राइट योर आंसर्स? In English, yes. और एमए हिंदी कर रहे हो तो Hindi, obviously, sir. Hindi. हाँ जी, Hindi, obviously, sir.
Is there any other thing? और यदि और यदि संस्कृत कर रहे हो तो Sanskrit? Sanskrit then. हाँ जी, यही तो प्रॉब्लम है। क्या? संस्कृत में पूरा एमए संस्कृत कर लीजिए बिना संस्कृत लिखे हुए। No, sir. Well, Take we are not view able to better. understand what are you saying. Please explain. It sounds a little bit confusing. We are not able to understand what you want to say here, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृत हाँ. में 10 पेपर यदि होते हैं तो 9 पेपर में आपको अपने आंसर संस्कृत में नहीं लिखने। Okay. 9 So किस में पेपर्स में लिखने हैं? आपको उत्तर हिंदी में या इंग्लिश में। That's Okay. weird. Oh my God. Okay, so we are talking about the medium of studies that we have two options in. मैंने ये नहीं कहा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ. मैंने नहीं कहा Hmm. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कहा मैंने। Sir, it means the medium of writing the answers in the examination. हाँ जी, ये केवल इंग्लिश में है दैट यू आर सपोज टू आंसर क्वेश्चंस इन इंग्लिश। इन हिंदी यू मे आंसर योर क्वेश्चंस इन हिंदी और इन इंग्लिश। Yes, I can suppose the real answer or the subjects may be related to like what about Hindi literature or Sanskrit literature and who was the first writer and all that stuff. So obviously we have to write in some other language. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हिंदी की पुरानी रिसर्चेज हैं वो सारी इंग्लिश में लिखी गई हैं। ठीक है, तो हम सब लैंग्वेज टीचर्स हैं, हम सब लैंग्वेज टीचर्स को क्या दूसरे लैंग्वेजेस में हो रहा है पता ही नहीं है। इंग्लिश इन दिस country is the second language or the first language? Sir, second language. So is India the only country where English is the second language? No, sir. There are many countries, mostly which were colonized by the Britishers. तो उन देशों में क्या हो रहा है? भाई Sir, वहाँ don't पढ़ाई have कैसे? any idea of that. अच्छा, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर इंग्लिश जो आपने कहा कि कॉलोनी नहीं थी, आपने कहा ना कुछ देश तो ऐसे हो गए जो that were colonized by England. There are some other countries where which were not colonized by England. वहाँ Yes, इंग्लिश sir. स्टडीज कैसे होती हैं? आप लोगों ने किताबें शायद नहीं देखी होंगी वो, क्योंकि Sir, with रूस reference to their regional language. नहीं इंग्लिश स्टडीज। सर इंग्लिश स्टडीज इन द रेफरेंस ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। जैसे कभी कभी हम लोग इंग्लिश को समझने के लिए हिंदी में उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, वो आपने किताबें नहीं देखी होंगी। पहले ये जो रूसी किताबों के स्टॉल लगते थे जगह जगह अलग अलग शहरों में, तो उसमें मेरे पास एक प्रोग्रेस पब्लिकेशन मॉस्को का पब्लिकेशन है, मैकबेथ। उसमें जो मैकबेथ का टेक्स्ट है उसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, वो इंग्लिश में है। लेकिन जो कमेंट्री लिखी हुई है उस पूरी किताब के ऊपर, दैट इज देयर इन रशियन। इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप ये काम कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट हो मैकबेथ का उसको इंग्लिश में कर दें और जो उसका इंट्रोडक्शन है वो हिंदी में कर दें। No, sir. नो सर। But that is the condition in most of the countries where English is used as the second language.
that do not have the colonial hangover. कॉलोनियल हैंगओवर में तो मजबूरी है वहां उसकी, वही दिमाग में चढ़ा हुआ है उसको, दैट ही इज माय मास्टर, व्हाट ही विल से, आई हैव टू लर्न हिज लैंग्वेज, आई हैव टू लर्न द लैंग्वेज द वे ही टीचेस मी, द वे ही विशेस मी. तो जैसे फिजिक्स को आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, तो सब्जेक्ट मैटर अलग हो जाएगा या एक ही रहेगा? एक ही रहेगा. So the subject matter will be the same. तो इंग्लिश लिटरेचर को हम इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें तो सब्जेक्ट मैटर अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर वही रहेगा. Sir, if we are studying English language, so I think we should need to be in English only. Or अरे भैया, if you are इंग्लिश studying Hindi, लैंग्वेज कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग तो हेमलेट पढ़ रहे हैं. हेमलेट okay. इंग्लिश लैंग्वेज है या हेमलेट इंग्लिश लैंग्वेज है या हेमलेट सब्जेक्ट है? Literature, एक टेक्स्ट है. text, literature. तो So the हम storyline of the play will be same, but the language will differ. Like अरे भैया, Shakespearean language. मैं आपको ये बताऊं, आप शेक्सपियरियन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं जब उसको एक्सप्लेन करती हैं या जब आंसर लिखती No, हैं? sir. No, sir. No, sir. So we can read Shakespeare in Hindi, but that won't be That would that the thing. won't be a That good would be experience the at all. same thing. भैया, So yeah. मैं अपनी बात फिर से बताऊं, टेक्स्ट वही रहेगी, Hmm. शेक्सपियर का टेक्स्ट वही रहेगा. Sir, like we can say the Mahabharata has been translated to the English, and most of the European countries and other world countries read it in English language. ट्रांसलेटेड नहीं कह रहा हूँ बेटा, मैं ट्रांसलेटेड नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ शेक्सपियर का टेक्स्ट को हम डिस्कशन कर रहे हैं. अब जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है, एमएलए स्टाइल शीट को मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हेमलेट के बारे में हिंदी में बात कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं. हेमलेट के बारे में हिंदी में उत्तर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हेमलेट पागल था या नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. लिख Yes, sir. सकते हैं. तो यदि इंग्लिश में आप उत्तर लिखें और हिंदी में उत्तर लिखें तो क्या अंतर है दोनों में? So the subject matter will be the same. Only the medium will change. यही तो मैं भी कह रहा हूँ इतनी देर से. ये समझ में आया इशू, नहीं समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हिंदी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम उस बच्चे को टेक्स्ट समझ में आ गई, और वो टेक्स्ट समझ करके जो उसके की इश्यूज हैं जो उसको अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहे हैं, और वो समझ में आ रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ठीक ढंग से उसने पढ़ लिया, उसको प्ले को समझ लिया, तो हमको एग्जामिनेशन में उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी तय करनी है या हमको उसकी समझ टेस्ट करनी है? His understanding of this. अभी क्या हम कर रहे हैं? अभी जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अभी हम ये काम नहीं कर रहे. अभी तो जो बच्चा जितना ज्यादा रट ले रहा है उतना वो एग्जामिनेशन में जाके रिप्रोड्यूस कर दे रहा है, उतना वो टॉप कर जा रहा है. तो इंग्लिश स्टडीज ऐसी स्थिति में डेरिवेटिव नहीं होंगी तो क्या होंगी? जो उसने रटा हुआ है उसको टॉप करके आया, उसको सोचता है भाई इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, सबने उसको सर पे चढ़ाया है. टेक्स्ट की समझ है या नहीं है? Yes, sir. और अंग्रेजी का हाल ये है, एमए इंग्लिश में आप जो पास करके आए उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा दीजिए इंग्लिश में. जो हम ये गर्व कर रहे हैं कि नहीं साहब वो लैंग्वेज सिखा दे रहे हैं हम उसको, देख लिख दे, वो एप्लीकेशन लिख दे.
बच्चे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे थे, उनका साहब कैसी बात कर रहे हैं हम, क्या मन का, चलो लिख लो। 30 बच्चे थे, एक ने भी सही एप्लीकेशन लिख करके नहीं दी। तो उनको मजा आने लगा थोड़ी देर में। बोले सर सर जरा वो बताइए इसको कि क्या हम वो कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। मैंने कहा तुमसे हिंदी में भी नहीं आता लिखना। ठीक है सर आज के किसी भी 12th पास या उससे आगे के भी बच्चे को आप अगर क्लास में पूछेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 1 से लेकर 100 तक गिनती आती है, तो मेरे ख्याल 10% जी भी नहीं मिलेंगे आपको। जी। तो अब देख लीजिए, हमारी जो उसकी वैल्यू है डिग्री की, वो देख लीजिए ना कि भाई हम क्या कर रहे हैं। Is it a sad reflection on the system, or is it a sad reflection on the teachers, or is it is सर जो जो बच्चे बच्चे ऐसे, ये एजुकेशन जो है ये अब इंडस्ट्री बन गई है, तो इसलिए एजुकेशन की जगह पैसा कमाने का जो जब से बना है, तो हर इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि मैक्सिमम पास परसेंटेज हम दिखाएं। वो कैसे होगा? सिस्टम ऐसा बना है कि बच्चा फेल ही ना हो पाए। इतने छोटे छोटे चीजों में उसको हर चीज में नंबर कर दिए, इवन अटेंडेंस के नंबर कर दिए गए। मतलब बच्चे को तो बहुत अब मेहनत करनी तो पड़ेगी। अब नहीं नहीं, तो अब आप इससे ये बताइए कि इससे देश को फायदा हो रहा है या देश की हालत गंभीर है। सर बच्चों का दिमाग में एक गलतफहमी पैदा हो गई कि वो बहुत काबिल हैं और पढ़े लिखे बेरोजगार इसीलिए घूम रहे हैं कि डिग्री है पर काबिलियत नहीं है उसके लायक। जी जी, है ना। तो अब इसको कैसे ठीक करें? एक तरीका तो ये कि भाई एक्सेप्ट कर लीजिए, जो जो नदी कह रही है उसके साथ बहते रहिए। तो मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊं। क्यों भाई? कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ का कह रहा है वही मैं भी करने लगूं। तो तमाम टीचर्स ये करते हैं। पिंकी जी कह रही थी ना कि सर हम आपके अंडर में रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैं कह रहा था, मैंने कहा भाई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है रिसर्च कराने का। इसीलिए खराब है क्योंकि कोई आता ही नहीं पढ़ने, या जो आएगा वो कहते हैं अच्छा सर मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, मैं अपना और काम करूंगा। मैं गधों को क्यों अपनी कमर पे ढोऊं? ठीक है सर, चलें आगे। अनफॉर्चुनेट बात क्या हो गई है सर, Yes, sir. इवन पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जी नंबर कम आते थे तो हमसे पूछा जाता था नंबर कम क्यों आए। अब टीचर से पूछा जाता है कि नंबर कम क्यों आए इसके, आप बताइए। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। अब इस सब का नतीजा ये हो रहा है कि देश पहले भी इंपोर्ट करता था चीजें, और देश अब भी इंपोर्ट कर रहा है चीजों को। ठीक है। अब ये देखो भाई, मैंने एक जर्नल में शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, एक कॉलोनियल कंट्री का जर्नल है ये, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर। क्या इसमें ये फाइल हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं क्या, पीडीएफ फाइल? हेलो। So you have to open that file on your screen first, then share the screen. आप फाइल ओपन कर दीजिए सर पहले स्क्रीन पे, then you फाइल can तो share. है, फाइल Open. अच्छा ओपन नहीं है अभी, फाइल ही ओपन नहीं, कहाँ गया ये? अच्छा ये फाइल तो ओपन है।
कहाँ गया, कहाँ से? अच्छा, इसको बंद करता हूँ। handbook crossing cut paste buttons paste जी, ये देखिए शायद अब हो। अब तो फाइल खोल ली मैंने। Why is it not opening? Open screen share Windows, yes। ये देखिए एक जर्नल दिखलाई दे रहा है आपको? Yes, sir. यस सर, अभी दिखाई दे रहा है। ये जर्नल जो है ये कहाँ का है? Bangladesh. बांग्लादेश के माने क्या हुआ? ये फॉर्मर कॉलोनी, क्यों भाई, हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। इन्होंने देखिए कहीं लिखा है क्या इसमें? क्या जर्नल में छापने के लिए कौन सा क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स? एडिटर कौन है? और ये देखिए छापा किन लोगों ने इनकी जर्नल में? एडवाइजरी बोर्ड है, राइट। इंडियन स्कॉलर्स हैं और बांग्लादेशी स्कॉलर्स हैं मेनली, राइट। एडिटोरियल नोट, कहीं भी इसमें मुझे नहीं मिला। हाँ, अब ये देखिए फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का टीचर है बांग्लादेशी ओरिजिनली, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज का, वो छाप रहा है। कौन सा फॉर्मेट यूज किया है? एमएलए स्टाइल शीट, ये एमएलए स्टाइल है, लेकिन लिखा यहाँ कहीं नहीं है कि ये एमएलए स्टाइल शीट को फॉलो कर रहा है या एमएलए स्टाइल शीट को फॉलो करना जरूरी है। जनरली वेयर इज द रेफरेंस? जनरली गाइडलाइंस टू द ऑथर्स, राइट। हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड। ये देखिए ये आ गया गाइडलाइंस। मैन्युस्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट स्टाइल MLA 8 लिटरेचर कल्चरल स्टडीज, APA स्टाइल फॉर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज। तो यदि आपको इसमें छापना है, इस जर्नल में छापना है, तो आपको अपना आर्टिकल किस में लिखना पड़ेगा? स्टाइल जानना पड़ेगा ना। हाँ, आगे क्या लिखा? यूज अमेरिकन स्पेलिंग्स। यूज अमेरिकन स्पेलिंग्स के माने अमेरिकन ऑथर को आप डील कर रहे हैं तो अमेरिकन स्पेलिंग्स ऑथर की कोट करेंगे ही करेंगे जो उसकी टेक्स्ट होगी, बट योर स्पेलिंग्स आल्सो नीड टू बी अमेरिकन। तो यदि आप ब्रिटिश लाइन को टो कर रहे हैं तो यहाँ छपने की संभावना है या नहीं है? हेलो, हिंदुस्तान There is no में जो आप कह रहे हैं possibility. कि हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के माने इन विच लैंग्वेज डू यू एक्सपेक्ट द आंसर्स टू गेट इन द एग्जामिनेशन? MA इंग्लिश में आपने अमेरिकन इंग्लिश यूज किया या ब्रिटिश इंग्लिश यूज किया? British, sir.
तो इफ यू कंटिन्यू विद दैट प्रैक्टिस तो ये बांग्लादेश के इस जर्नल में भी आप आर्टिकल छाप पाएंगे या नहीं छाप पाएंगे? No, sir. Obviously not, sir. तो जिसको नहीं छापना है वो इस अंतर को समझने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश को। संस्कृत वाला कहता है मुझे इसमें छापना नहीं है, हिंदी वाला कहता है मेरा आर्टिकल कौन सा छाप रहे हो, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। प्रॉब्लम किसकी हुई? तो अभी देखिए, लैंग्वेज अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स वाले को एपीए स्टाइल सीखना है और इसको लिटरेचर वाले को एमएलए स्टाइल सीखना है। एक पेपर मैंने अपना लिख करके यूक्रेन भेज दिया लिंग्विस्टिक्स के जर्नल में, तो उन्होंने कहा सर ये एपीए स्टाइल में तो आपने भेजा नहीं है, पहले हमारा फॉर्मेट देखिए क्या है तब आर्टिकल सबमिट करिए। दे आउटराइटली दे रिटर्न दैट पेपर। यदि छापना है तो आप यू हैव टू कंफर्म टू देयर स्टाइल। नहीं छापना है मौज लीजिए मत पढ़िए, मत फॉलो करिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये एमएलए स्टाइल शीट को पॉपुलर करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर हो गई इस तरीके से? हेलो, ये मेरा कनेक्शन स्नैप हो जा रहा है बार बार, फिर स्नैप हो गया। It's Shubha, you're audible, sir, and the screen is also visible. बस गायब होने ही वाला होगा क्योंकि यहाँ से तो गायब कनेक्शन स्नैप्ड लिख करके गया। अब भी दिखलाई दे रही फाइल? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. We can hear you. We can see the screen both. अच्छा चलो वेरी गुड, लेकिन मेरे यहाँ लिख कर के आ गया कनेक्शन स्नैप्ड। तो चलें आगे बढ़ें थोड़ा सा। यस सर। जल्दी जल्दी से किताब को देख डालें कि एमएलए हैंडबुक में क्या चीज है इसमें। तो एक किताब है आप लोगों के पास या नहीं? हेलो जी, नो एमएलए सर। स्टाइल शीट 9th edition। Sir, your That is screen the is not moving. मूवी करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो हो गया ना। Oh, in a few minutes, you have rejoined. I have admitted you again. जी The connection will break for a few minutes and it will reconnect again. जी, यही तो मैं भी कह रहा हूँ बार बार। Yes, sir. आप लोग मानने को तैयार नहीं है कि मेरा कनेक्शन जो है वो स्नैप हो गया। कह रहे हैं सर स्क्रीन तो दिखलाई दे ही रहा है। सर वो अब पहुंचा है हमारी स्क्रीन पे, वो जो कनेक्शन स्नैप हुआ था वो नाउ इट हैज रीच्ड आवर स्क्रीन्स ग्रेजुअली। चलिए, तो ये किताब ये है बेटा, देखो एमएलए हैंडबुक दिखलाई दे रही है नहीं? हेलो, So we are on manuscript requirement page. Yes, now it is visible, sir. MLA handbook 9th edition. हाँ उसको बंद कर दिया मैंने। वो तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिखाया आपको कि अधिकतर जर्नल्स में वो एमएलए हैंडबुक उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको पढ़ना इसको मजबूरी है। और एक चीज और मैं बता दूं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें एमएलए स्टाइल शीट में और एपीए स्टाइल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है। सपोज यू नो हाउ टू ड्राइव द मोटरसाइकिल ऑफ होंडा, तो बजाज की मोटरसाइकिल चला लेंगे या नहीं चला लेंगे आप? क्यों भाई? जो बजाज की मोटरसाइकिल चला ले रहा है वो होंडा की मोटरसाइकिल चला ले रहा है, नहीं चला पा रहा है?
चला पा रहा है। तो बेसिक्स यदि क्लियर हो जाए उसके, तो आपने जैसे यदि ये होंडा की मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया तो होंडा का स्कूटर भी चला ले रहे हैं ना आप लोग, या मुश्किल काम है वो? यस सर। मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है ना? थोड़ा सा सावधानी से चलाइए, देन यू विल बी एबल टू मास्टर इट। अब ये देखिए, जो टाइटल में कह रहा था, द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, दिस इज द कंप्लीट टाइटल, द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, राइट? अब इसमें 400 पेजेस में देख लीजिए जरा सा, दिस फॉर्मेटिंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो बेसिकली फॉर्मेट, राइट? देन मैकेनिक्स ऑफ प्रोज, स्पेलिंग्स कैसे देखेंगे, कौन सी डिक्शनरी से देखेंगे, प्लूरल कैसे लिखेंगे, सिंगुलर कैसे लिखेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स कैसे लिखेंगे। तो अब ये जो बेसिक मसला है, बेसिक मसला किसमें? इसमें एमएलए स्टाइल शीट में और एपीए स्टाइल शीट में बेसिकली दिस इशू इज रिलेटेड टू पंक्चुएशन। कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कोलन कहाँ लगाना है, सेमी कोलन कहाँ लगाना है। तो यदि आप पंक्चुएशन को ध्यान से देख पाएंगे तो आप आसानी से इस काम को कर लेंगे। अपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगाना है, कोटेशन मार्क्स कहाँ लगाने हैं, कहाँ छोड़ देने हैं, राइट? प्रोज को इटैलिक्स में लिखना है या स्ट्रेट लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं। यदि दूसरी लैंग्वेज के आ जाएंगे वर्ड तो उसमें कैपिटल लेटर कैसे लिखना है, उसको लैंग्वेज को कैसे लिखना है, दूसरी लैंग्वेज की रेफरेंस आ जाएंगे उनको कैसे लिखना है, ट्रांसलिटरेटेड नेम्स को कैसे लिखना है, पर्सनल नेम सफिक्सेस कहाँ लगाएंगे, प्रीफिक्सेस कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, प्रोफेसर टीए सीलेट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा लिखेंगे या केवल सुशील कुमार शर्मा लिखेंगे, या केवल शर्मा लिखेंगे, या केवल सुशील लिखेंगे, या केवल सुशील कुमार लिखेंगे। तो ये सारे जो मसले हैं ये सब इन्होंने बताया है। ऑर्गेनाइजेशन को यदि आप कोट कर रहे हैं तो किस तरीके से कोट करेंगे, इंग्लिश टाइटल्स को कैसे कोट करना है, राइट? कोटेशन के अंदर टाइटल्स को कैसे लिखना है, टाइटल के अंदर टाइटल आ जाए तो कैसे लिखना है, टाइटल के अंदर टाइटल माने जैसे कविता का टाइटल है ऑन रीडिंग लैंगस्टन ह्यूजेस द इंग्लिश स्टूडेंट। तो लैंगस्टन ह्यूज की कविता है, उसका टाइटल भी उस टाइटल के अंदर आ रहा है। सो टाइटल विद इन टाइटल, कोटेशन, देन फॉरेन लैंग्वेज टर्म्स, टाइटल्स विद इन टाइटल्स, उसको कैसे करें, शॉर्टन टाइटल्स इन प्रोज, देन नंबर्स को कैसे लिखना है, न्यूमरल में लिखना है, अरेबिक नंबर्स में लिखना है, उनको सीरियल नंबर डालना है नहीं डालना है, उनके प्लूरल फॉर्म्स कैसे लिखने हैं, ये सब चीजें इसमें। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज, ये एक नया चैप्टर है इसमें, नया चैप्टर इन द सेंस दैट अर्लियर द फेमिनिस्ट इश्यूज वर नॉट डेल्ट विद। अब जो लैंग्वेज है उसको वो इंक्लूसिव बना रहे हैं, इसमें भी थीसिस में भी, लैंग्वेज एसोसिएशन में भी फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने हंगामा मचाना शुरू किया दैट दिस लैंग्वेज शोज मेल बायस, या द लैंग्वेज शोज रेसिस्ट बायस। रेस ब्लैक्स के लिए आप ब्लैक शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कलर्ड इस्तेमाल करिए। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज। देन डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज, कहाँ से आप कोट कर रहे हैं, तो इसमें अवॉइडिंग प्लेजियरिज्म, why is plagiarism a serious matter? So plagiarism basically, पहले तो जो पुराना एडिशन था इसका 6th एडिशन, उस 6th एडिशन में देयर वाज ए कंप्लीट चैप्टर ऑन प्लेजियरिज्म। इस 9th एडिशन में इसको घटा करके एक सेक्शन कर दिया केवल। सो plagiarism basically happens to be a legal issue, but as it has been dealt with here is that even if you are borrowing somebody else's idea without using quotation marks or without an appropriate reference, then that is also plagiarism. So it is not simply referred to
with reference to language, using the exact words, this is also about using the ideas. अब यदि बच्चे को आपने पहले ही बता दिया हाई स्कूल में कि बेटा दूसरे के आइडियाज को नहीं लिखना है, अपने आइडियाज को लिखना है, वरना ये चोरी होगी, तो धीमे धीमे उसको आदत पड़ जाती है. एंड दैट पर्सन इज एबल टू राइट और गिव हिज और हर ओन ओपिनियन. अभी तो यहाँ मसला यह है कि जो दूसरों के आइडियाज हैं उनको किस तरीके से अपना आइडिया बना करके बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर दें. द अदर पर्सन शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो अधिकतर जो हिंदुस्तानी लेखकों की किताबें हैं, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग इन द फील्ड ऑफ साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इवन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज की किताब लिखी, अमेरिका की किताब ली, उस किताब का सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव बनाया, पैसिव को एक्टिव बनाया, कुछ अपने सेंटेंस डाल दिए, ये मेरी किताब होगी, ये मेरी टेक्स्ट बुक होगी. सो देयर इज नथिंग ओरिजिनल इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, राइट. और धीमे धीमे जॉब्स कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहे हैं, राइवलरीज आर इंक्रीजिंग, लॉज आर चेंजिंग, द इम्पैक्ट is seen even on the academics. So much so कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर से थे दीपक पेंटल साहब. He was sent to jail after his retirement from the university as the vice chancellor on the charge of plagiarism. There are several cases where the people have been sent, have been demoted. They have been sent, thrown out of job because of this plagiarism. So we need to be very careful. Sciences में खास तौर पे. Why? Because it is sometimes a teamwork. साइंस के पेपर्स में देखिए तो 5 ऑथर, 6 ऑथर, 7 ऑथर सामान्य बात है. करता क्या है, एक बच्चे ने कोई आर्टिकल लिखा, उसके सुपरवाइजर हैं और वो जहां जहां उन्होंने लैब में भेजा उन सबके नाम लिख दिए. अब उस बच्चे ने वो उतार रखा है पेपर या नहीं उतार रखा है, ये किसी ने वेरीफाई किया नहीं, कहाँ से उतारा ये भी वेरीफाई नहीं किया, उसने सबके नाम लिख के पेपर छाप दिया. एंड आफ्टर 20 years he knows that he has copied out, or his friends know that it has been copied out, or somebody raises that question, oh, this has been copied out. The matter is taken up and the teacher has to face the consequences. डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती है. कॉमन नॉलेज, हाँ, जैसे हमको अंडा उबाल के खाना चाहिए, तो कॉमन नॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है. इसको ये कहने की जरूरत नहीं कहाँ से ये लिया गया है. हाँ, एल्यूजन्स हैं, एपिग्राफ्स हैं, तो ये जो कॉमन नॉलेज की चीजें हैं, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. फिर जो वर्क साइटेड हैं उनको कैसे आप लिखेंगे, राइट. सो द लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड, ऑथर को कहाँ लिखेंगे, ऑथर का सरनेम कहाँ लिखेंगे, उसका मेन नेम कहाँ लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप कहाँ लगाएंगे, कॉमा कहाँ लगाएंगे, हाँ, ये सब बातें. यदि किसी किताब को 2 ऑथर्स ने लिखा है तो कौन से ऑथर का नाम इन्वर्ट करेंगे, कौन से ऑथर का नाम इन्वर्ट नहीं करेंगे, ये बातें. 2 ऑथर, 3 या उससे ज्यादा ऑथर हैं तो क्या करेंगे, एडिटेड किताब है तो क्या करेंगे, राइट. किसका नाम इन्वर्ट करेंगे, किसका नाम नहीं करेंगे, हाँ. नेम्स नॉट रिवर्स्ड, हाँ, तो पहला जो ऑथर है उसका नाम रिवर्स करेंगे, दूसरे का नाम रिवर्स नहीं करेंगे. जैसे ब्रह्मदत्त शर्मा एंड सुशील कुमार शर्मा, तो शर्मा कॉमा ब्रह्मदत्त एंड सुशील कुमार शर्मा, तो दूसरा नाम इन्वर्ट नहीं किया, पहले नाम को इन्वर्ट किया. सो ऑल दीज रूल्स, हाँ. और शर्मा के बाद फिर पहले शर्मा के बाद कॉमा, दूसरा सुशील कुमार शर्मा के बाद में फुल स्टॉप. तो बिब्लियोग्राफी में वो नाम कैसे जाएंगे, पहले उसको बिब्लियोग्राफी कहते थे, आजकल वर्क साइटेड कहते हैं, राइट. सो नेम्स नॉट रिवर्स, लैंग्वेजेस दैट ऑर्डर फर्स्ट, देन लैक ऑफ सरनेम. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ सरनेम है नहीं, जैसे प्रेमचंद, तो प्रेमचंद में जहाँ नाम नहीं है वहाँ कैसे करें, उसको क्या इन्वर्ट करें, चंद प्रेम कर दें उसको या प्रेमचंद रहने दें.
कौन से नाम का एब्रीविएशन करना है, कौन से का नाम नहीं करना है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को क्या हम लिखेंगे MS गुप्त या गुप्त MS या गुप्त मैथिली शरण, राइट। तो पर्सनल नेम्स को कैसे क्या करना है, डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं एक ही नाम की, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग नाम की स्पेलिंग लिखी है, या एक ही ऑथर ने अपने अलग अलग नाम लिए हैं, उनको हम क्या करें, स्यूडोनेम्स हैं। हाँ, स्यूडोनेम्स के माने जैसे अरे भाई गोपाल दास नीरज, तो ये नीरज, नीरज के नाम से सब लोग जान रहे हैं इनको। या जैसे एक अंग्रेजी में ऑथर ड्रामेटिस्ट हुआ H मुनरो साकी, तो अब साकी को क्या करें हम, सरनेम माने न माने, उल्टा नाम लिखें सीधा नाम लिखें, सो ऑल दोज इश्यूज। टाइटल्स उसी तरीके से किताब का टाइटल कैसे बनाना है। जो रिसर्च पेपर वाला आर्टिकल है, जो रिसर्च पेपर में टाइटल है, वो कैसे करना है, तो कीवर्ड्स शुड बी देयर। क्यों कीवर्ड्स होने चाहिए, बिकॉज इट इज विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड दैट वन पर्सन इज एबल टू सर्च द आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स हैं उनको सर्च करने के लिए आपका आर्टिकल उसमें आ जाएगा। यदि कीवर्ड्स उस आर्टिकल में नहीं है तो कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू लोकेट दैट आर्टिकल। और आर्टिकल लोकेट नहीं होगा तो कोई पढ़ेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं तो आपके जो पेपर की रैंकिंग है वो अपने आप कम आ जाएगी। तो citation to your paper will be made only when this paper is made available to the people to read. Only then they will be able to make use of it, right? तो टाइटल में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज इसमें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन से स्टाइल से इसको लिखना चाहिए। पब्लिशर और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन को, कौन पब्लिशर है, कैसे छापना है। अब एक CD में से हम कोट कर रहे हैं या YouTube में से कोट कर रहे हैं या कोई लेक्चर कोट कर रहे हैं, उसको हम कैसे करें, राइट। पब्लिशर उसका कहाँ से ढूंढेंगे, ऑडियो विजुअल मीडिया के केस में, फिल्म के केस में कहाँ से ढूंढेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। पब्लिकेशन डेट क्या है, उसको कहाँ से मेंशन करें। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि MLA हैंडबुक 4th एडिशन में जो चीज़ें हैं और जो MLA एडिशन 6th एडिशन में चीज़ें हैं और जो 9th एडिशन में, वो सब अलग अलग है, कंटेंट्स अलग अलग है। तो यदि आपने सन नहीं लिखा, उसका पब्लिकेशन वो नहीं लिखा, देन द पर्सन इज लाइकली टू बी कंफ्यूज, क्योंकि टाइटल तो वही है उस किताब का, ऑथर भी वही है। तो अब वो कौन सी चीजें होंगी, देयरफॉर इवन दीज डेट्स एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट। हाँ, कि आपने कब वो साइट किया है, कौन सा सीजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोकेशन, पब्लिकेशन हाउस कहाँ है, पब्लिकेशन हाउस मैकमिलन इंडिया है या मैकमिलन लंदन है। जो मैकमिलन लंदन की किताब है वो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं, जो हिंदुस्तान किताब है वो लंदन में अवेलेबल नहीं है। तो उस लोकेशन को कैसे लिखें, या वो आर्टिकल का लोकेशन कहाँ है उसको कैसे लिखें। अब बहुत सारी किताबें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अब जो मैं किताब आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द PDF फॉर्मेट, the hard copy could be different। तो PDF कॉपी में वो चेंजेस हैं या नहीं हैं, कई बार समटाइम्स द पेज नंबर्स आल्सो चेंज, राइट। तो वो कौन सा पेज नंबर हम साइट करें, क्या हमको ये करना जरूरी है या नहीं है, ऑल दीज इश्यूज दे हैव बीन डिस्कस्ड हियर, राइट। प्लेसमेंट आफ्टर द टाइटल ऑफ सोर्स, PDF है या हार्ड कॉपी है, कहाँ से लिया है, क्या उसको ये बताने की जरूरत नहीं है। पंक्चुएशन ऑफ एंट्रीज, तो पूरा जो मसला है वो पंक्चुएशन को ही लेकर के, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ सेमीकोलन लगाना है, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। देन साइटिंग द सोर्सेज इन द टेक्स्ट। हाँ, तो कविता को कैसे करना है, प्रोज ऑथर को कैसे करना है, ऑथर के नाम वहाँ लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। टाइटल मान लीजिए बड़ा लंबा है तो क्या पूरा लंबा टाइटल लिखना है या छोटा टाइटल लिखना है। जैसे आपको थीसिस लिखनी है, उस थीसिस में आपको बार बार पैराडाइज लॉस्ट लिखना है, तो क्या पैराडाइज लॉस्ट लिखने से काम चलेगा या PL लिखने से भी काम चल सकता है। हाँ, तो ऐसे जो मसले हैं ये सारे इस चैप्टर में हैं।
इसके अलावा फिर कोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग सोर्सेज, तो क्या आपको पोइम के पैराफ्रेज यदि कर रहे हैं तो भी कोटेशन मार्क्स लगाने की जरूरत है, या ओरिजिनल कर रहे हैं तो भी लगाने की जरूरत है? कि आप किसी क्रिटिक की ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नॉट यूजिंग हिज ओन वर्ड्स, यू आर पैराफ्रेजिंग इट, तो कैसे करें उसको, राइट? 3 लाइन तक की कविता है या 2 लाइन तक की कविता है तो क्या करें, और 2 लाइन से ज्यादा की कविता है तो क्या करें? प्रोज के जो वर्ड्स हैं यदि वो 100 तक हैं तो उनका क्या करें, 100 से ज्यादा हैं तो उसका क्या करें, राइट? ऑल दीज इश्यूज। कोटेशन मार्क्स, हाँ, उसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं? जैसे ओरिजिनल कोटेशन में शी का यूज था, लेकिन जब हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो हमारे सेंटेंस में शी फिट नहीं हो रहा है, वहां पर ही हमको लिखना है, तो क्या शी की जगह ही लगा सकते हैं हम? हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके वहां पर अपना वर्ड इंसर्ट कर दिया है। इसके माने स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके माने ये चीज ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं थी, ये हमने इसमें डाली है। यदि हमको किसी स्लाइड को कोट करना हो या वीडियो को कोट करना हो तो कैसे कोट करें? है नोट्स हमको यदि लिखने हो अपने आर्टिकल में तो वो नोट्स कहाँ डालें? नोट्स के मायने हैं कि कोई चीज हमारे मेन आर्टिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन बिना उसको समझे हुए, बैकग्राउंड में बिना उसको समझे हुए वो चीज हमको क्लियर नहीं होगी, तो उसको हमने नोट्स में डाल दिया, राइट? और ये नोट्स कई तरह के हो सकते हैं, बिब्लियोग्राफी नोट्स हो सकते हैं, कंटेंट नोट्स हो सकते हैं, स्टाइलिंग कैसे होगी फिर उसकी, उसमें प्लेसमेंट कहाँ होगा टेक्स्ट में, उसका कहाँ लगाएंगे, उसको कहाँ नहीं लगाएंगे। और फिर इसके बाद इस किताब में इन्होंने एब्रीविएशंस, अपेंडिक्स, एब्रीविएशंस का कैसे यूज करना है, वर्क साइटेड लिस्ट को कैसे बनाना है, पब्लिकेशन फॉर्मेट में कैसे होगा, ये सब चीजें भैया इस किताब में इन्होंने डिस्कशन किया है। तो इसमें से बताइए पिंकी जी क्या पढ़ाया जा सकता है इतने कम समय में, राइट? डिफरेंट एडिशंस आई हैव टॉक्ड अबाउट। हाँ, बाकी जो 6th एडिशन था वो बहुत अच्छा एडिशन था, क्योंकि उसमें हाउ टू गो टू द लाइब्रेरी, हाउ टू सर्च योर मटेरियल, हाउ टू लुक फॉर ए टॉपिक, व्हाट इज प्लेजरिज्म, इन पर भी डिस्कशन था। एक एक चैप्टर उसमें दिया गया था। तो केवल 9th एडिशन ही ना देखें, उसको भी देख लेंगे तो रिसर्च को कैसे टेकअप करना है ये उसको उससे समझ में आ जाएगा, एंड द कनेक्शन वंस अगेन इज स्नैप्ड। जी बताएं, I अदरवाइज think, आई yes, जी, sir. Yes, sir. हाँ, आई एम ऑलमोस्ट डन। कोई सवाल All right. जवाब हो आप, और आपकी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो बताइए। Sir, I just want to know one thing. Like these days, we are getting so many, proposals from some editors. Like they are editing books, they are publishing anthologies, right? So they sometimes circulate their advertisements, like papers are invited, research papers are invited. And जी what is the relevance of getting our paper published in such book, like in anthology kind of something? This is one thing. Another question related to this is just that, is there any relevance, like if we publish our own anthology? Like, do you think that I am able to publish an anthology? I call for research papers and I get them edited and I publish it on my own. Do you think that it will get any relevance anywhere? this word relevance has got to be explained. Relevance in terms of APA score, relevance in terms of entering the arena of publication, relevance in terms of getting a job, all these are different issues. जैसे साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिलना है, तो साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिलना है तो पब्लिश्ड बुक होनी चाहिए। साहित्य अकेडमी awards books, not awards not only the creative books but also criticism books. It is nowhere mentioned over there that you cannot publish your own book or only a publisher has got to publish it. अब आपने प्रेमचंद के ऊपर बहुत बढ़िया किताब लिखी है, लेकिन वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट
आपके पास ही रखी हुई है, क्या आप उसको सबमिट कर सकते हैं अवार्ड के लिए? पिंकी जी, क्या आप उसको अवार्ड के लिए सबमिट कर पाएंगी? No, sir. Obviously. not. तो इसलिए छापना, तो यदि आपको अवार्ड चाहिए या आप चाहते हैं कि आपको उस वर्ल्ड में रिकग्निशन मिले कि नहीं इन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, तो उसको छापना ही पड़ेगा। ओनली देन, हाँ, वाई इज ए प्रिंट नीडेड और वाई इज ए सॉफ्ट कॉपी नीडेड? ए सॉफ्ट कॉपी और ए प्रिंट कॉपी इज नीडेड बिकॉज it can be disseminated very easily to a large number of people, to all those people who matter. तो उसके लिए वो पहला स्टेप है। तो यदि छपाई नहीं, तो जब छपाई नहीं तो फिर उस लाइन में कहाँ से आएंगे हम? No. ठीक है। Basic. Actually, I wanted to ask about the anthology thing. Like, we are just मैंने collecting and किताब publishing editor. अरे भाई वो किताब चाहे एंथोलॉजी हो चाहे वो ओरिजिनल हो, तो ओरिजिनल तो समझ में आया ना कि भाई मेरी ओरिजिनल किताब है तो वो छपी। अब एंथोलॉजी और जर्नल, द गेट जर्नल is quite difficult because it is quite competitive over there. Right, वो right. वो साल में एक इशू छाप रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे दो लोग छाप रहे हैं, दो इशू छाप रहे हैं। उसमें उन्होंने यदि एक इशू स्पेशलाइज्ड कर दिया तो मेरा आर्टिकल उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए जर्नल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। इस पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग के लिए मैंने एक झंपा लहरी पे आर्टिकल लिखा, सपोज, राइट। उन्होंने कहा कि मेरा जो पब्लिकेशन शेड्यूल है उस पब्लिकेशन शेड्यूल में झंपा लाहिरी कहीं फिट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि जर्नल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का जो अगला इशू आ रहा है वो आ रहा है कैरेबियन राइटिंग पर, उसके अगला जो इशू आ रहा है वो आ रहा है अफ्रीकन राइटिंग्स पर, तो झंपा लाहिरी कहीं फिट ही नहीं होंगी। और 2 साल में झंपा लाहिरी पे इतना मटेरियल आ जाएगा कि मेरा जो आर्टिकल है वो हो सकता है इरेलेवेंट हो जाए। सो टू गेट सम, इसलिए जर्नल में हमेशा देखते रहना चाहिए कि जो हम छाप रहे हैं वो उस और जिस जर्नल को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लायक वो है या नहीं है, उसके पब्लिकेशन शेड्यूल में वो फिट हो रहा है या नहीं फिट हो रहा है। तो यदि कोई किताब छाप रहे हैं, उन्होंने कहा भाई झंपा लाहिरी पे किताब नहीं है, वो डायस्पोरा फिक्शन पे किताब है, तो एक आर्टिकल उसमें डायस्पोरा फिक्शन पे भी हो गया। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एपीआई स्कोर में उसके नंबर मिलते हैं? तो एपीआई स्कोर में नंबर एडिटेड किताब के नहीं मिलते, लेकिन चैप्टर के, बुक चैप्टर के नंबर मिलते हैं। तो So the इस person तरीके से who has उसमें edited the एडिटर, book. इस तरीके से उसमें जो एडिटर है उसका भी अपना एक आर्टिकल हो गया, या अपने 2 आर्टिकल उसने डाल दिए तो उसको 2 आर्टिकल के नंबर मिल गए। पहले एडिटेड बुक्स के नंबर मिलते थे, लेकिन इधर उन्होंने बंद कर दिए एडिटेड बुक्स के नंबर देना। हेलो Yes, sir. जी, कुछ कह रही थी आप? Yes, sir. That means if we are editing a book or collecting papers for publication, we must at जी, least contribute our 1 or 2 chapters should be contributed from the editor's side also. वो करते ही हैं, यदि उसे नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं उस किताब का, Mm-hmm. है ना। सो दैट इज वन ऑफ द वेज टू गेट देयर ओन मटेरियल पब्लिश्ड। Yes, sure. Right. So thank you so much, sir, for this also. Yes. लेकिन द कंपनी मैटर्स अ लॉट। The publication house. कंपनी ऑफ द फेलो कंट्रीब्यूटर्स। एडिटर साहब की अंग्रेजी गलत है, जो बाकी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी अंग्रेजी गलत है, तो उनका ये भी बेवकूफ होगा इसके साथ। सो द वो जो नाव है ना, उस नाव में सब लोग डूबते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में तो आया, but what are the parameters now? How to
find out अरे भैया, the यदि question यदि is उसने यदि उसने वो आपको लेटर भेजा है, उस लेटर में ही 20 गलतियां हैं, hmm, तो आपको उसका एडिटर का लेवल समझ में नहीं आ रहा क्या? hmm, हाँ, right sir. वो एडिटर कह रहा है अरे यार सब चलता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि सब चलता है के माने क्या है? Hmm. So we need to भाई have a discrimination sense, and we have to find out which editor is of good quality मैं and तो which is not. मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि क्रिटिकल इंसाइट रखनी पड़ेगी। क्यों भाई? Critical insight for writing a paper, and then critical insight for getting it published in a reputed book. भाई ये बिल्कुल वैसे ही है, जब आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो आप क्या सड़ा टमाटर ले आते हैं क्या? क्रिटिकल इंसाइट वहां नहीं होती, आप टमाटर को पलट के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? Yes, obviously. तो टमाटर पलट के देखेंगे लेकिन किताब पलट के नहीं देखेंगे, जर्नल पलट के नहीं देखेंगे। So it's तो like आपको this कि पहले टमाटर चेक करेंगे, उसके बाद टमाटर जिसमें डलना है उसमें डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी, सारी रेसिपी ऐसे हैं जिसमें टमाटर डलेगा ही नहीं तो वहां से हमें अपना हाँ, टमाटर बचा के रखना पड़ेगा। हाँ जी, Yes, sir. हाँ। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं सब्जी वाले से अरे भाई टमाटर दे देना, उसने दे दिए, दो सड़े भी चढ़ा दिए, तो अगली बार जाते हैं कि आप उस टमाटर वाले के पास, अगले दिन जाके कल आपने सड़े टमाटर दे दिए थे मुझे। और बार बार यदि वो रिपीट कर रहा है तो आप अपना चेंज करेंगे या वही वेंडर रखेंगे? बताओ भाई क्या करते हैं? तो जो जो 10 रुपए का सामान है उसमें तो इतनी खोजबीन कर रहे हैं, और जिस सामान से पूरी रेपुटेशन जुड़ी हुई है, पूरी तनख्वाह मिलनी है, पूरा जीवन चलना है, उसमें हम बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इज दैट अप्रोच करेक्ट और इनकरेक्ट? Incorrect. हेलो, फिर It's incorrect. We have to think about all these things. तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे डांटना ना पड़े किसी को लेकिन डांटने मन हो डांटने रहा के है सर अपने, आपका, आप डांट सकते हैं। असल में मेरी शक्ल नहीं दिखलाई दे रही ना, तो उनको ये मालूम नहीं कि बूढ़ा आदमी है सफेद बालों वाला, वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम बहुत सीनियर टीचर हैं। हम्म, गलती उनकी नहीं है बेचारों की, और टीचर के अपने ईगो इश्यूज रहते हैं। चलो खैर, लेकिन मैं डिपार्टमेंट में बहुत डांटता हूँ बच्चों को, तो उसका नतीजा क्या है कि जो मेरे पास आएगा वो बहुत सोच समझ करके आएगा, वेरी केयरफुली प्रिपेयर्ड। तो मेरा टाइम बचता है ना उससे। तो यदि आपको पढ़ना लिखना नहीं है तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं भाई, किसी और पास चले जाइए। डिग्री तो लेनी है आपको, डिग्री कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, है ना? तो ऐसा कोई कि उसका खामियाजा मुझे नहीं भुगतना पड़ता। मेरे जो जूनियर कुलीग हैं उन्होंने 30 30 40 40 रिसर्च करा दिया, मेरे साथ 4 रिसर्च हुआ, 5 रिसर्च हुआ। ठीक है, तो यदि किसी को नंबर ही अपना बढ़ाना है तो नंबर 30 ज्यादा है या 4 ज्यादा है? एंड बाय द वे Quality एक matters. एक हमारे Quality एक matters. एक हम, हाँ जी, हेलो। Quality matters, sir, definitely. Quality is more important than quantity. एक हमारे यहाँ प्रोफेसर ऐसे भी थे जो रिटायर हुए, ही डिड नॉट सुपरवाइज इवन ए सिंगल कैंडिडेट थ्रू आउट हिज करियर, नॉट इवन ए सिंगल कैंडिडेट। उनका मैं इन गधों को पढ़ाऊं कि अपना काम करूं? ठीक है ना?
और उनकी जो किताब है उनका नाम है अरविंद कृष्ण मल्होत्रा। उनकी इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर देखिए आप। इज इट नॉट ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स? क्यों भाई, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स ही तो है वो। डिफरेंट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स वर assigned to different people and they contributed those articles. तो यदि आर्टिकल में दम है तो बात बन जाएगी, आर्टिकल्स में दम नहीं है तो बात नहीं बनेगी। देखिए अमेरिका में वो कहते हैं पब्लिश और पेरिश, और OR टेन्योर अपॉइंटमेंट्स हैं। आपकी अच्छी किताब आ गई तो आपको पता चल जाता है भाई, आफ्टर ऑल एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ ए गुड मैन, a good teacher, a good researcher. So how do you come to know that he or she is a good researcher? Through publications. Publication. तो पब्लिश और पेरिश, तो आपको यदि अच्छा काम आपका पब्लिश हुआ है देन एनीबडी विल लाइक टू रिक्रूट यू। सो पब्लिश और पेरिश। हिंदुस्तान में भी वो सिद्धांत लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, पब्लिश और पेरिश। तो किताबें छप रही हैं। तो अमेरिका में दूसरा सिद्धांत है, अमेरिका में भी यही हुआ। दूसरा सिद्धांत हुआ पब्लिश एंड पेरिश। And perish, sir. हाँ, और वाज रिप्लेस्ड बाय एंड। हमारे यहाँ पर पब्लिश एंड पेरिश। तो कैसे गायब हो गए आप? आप बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि आपकी जो विद्वता है वो दिखलाई देगी पेपर में। इज की जगह आर लिखा हुआ है, विल की जगह शैल लिखा हुआ है, सिंगल कॉमा जहाँ होना चाहिए था वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है, दूसरों के जो कोटेशंस हैं वो आपने अपने बना करके रख रखे हैं। कहीं तो चोर आदमी है, मूर्ख आदमी है, इसे क्या आ रहा है? ये तो वो है ना, ये क्या कहते हैं, अरे भाई शतक, भर्तृहरि शतक। भर्तृहरि शतक में एक श्लोक है जिसमें यह है कि मूर्खों की सभा, विद्वानों की सभा में एक मूर्ख भी चुप रह करके अपना काम चला लेता है, लेकिन विद्वानों की सभा में कोई जाकर के बोलने लगा तो उसकी मूर्खता सामने आई जाएगी। तो मूर्ख थे, किताब छाप करके अपनी मूर्खता सिद्ध कर दी, अब तो प्रूफ बन गया। तो क्या हो गया? वो पब्लिश एंड पेरिश हो गया ना। Okay. Okay. Now I got it, sir. Fine. ठीक है। हंसों के बीच में एक बगला भी छिपा हुआ था, सफेद 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 सफेद, सब चलते चले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही बोलना शुरू किया समझ में आ गया कौन बगला है कौन हंस है। कोयलों के बीच में एक कौवा भी छिपा हुआ था, सब चलता रहा। बोलना शुरू किया, वैसे ही समझ में आ गया कौन कोयल है, कौन कौन कोयल है, कौन कौवा है। Example. ठीक है ना। Example तो बहुत अच्छा अल्टीमेट दिया है सर तुमने। अल्टीमेटली आपकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी। तो आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, छापिए, कहीं छापिए। एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। हमारे डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने जर्नल छापना शुरू किया, जर्नल ऑफ वीमेन स्टडीज। उसमें तब तक 7वां एडिशन आ गया था उन्होंने अपने जर्नल में लिखा फोर्थ एडिशन के हिसाब से साइटेशन होना चाहिए। एक तरफ 7वां एडिशन, दूसरी तरफ आप मांग रहे हैं कि 4th एडिशन के हिसाब से।
तो आपकी मूर्खता तो वहीं पता चल गई। आप जर्नल छापना चाहते हैं और आपको यही मालूम नहीं कितना एमएलए हैंडबुक आया। खैर, चूंकि डिपार्टमेंट का जर्नल था तो हमने सोचा शायद ये आर्टिकल छाप दें। कुछ इनको उनसे पूछा कि आर्टिकल आपको एंटी फेमिनिज्म पे दे दें। हाँ, दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, वी शैल कंसिडर। जब इशू आया तो उसमें वो आर्टिकल नहीं। कि क्या हुआ, वो आर्टिकल आपने शामिल नहीं किया उसमें? बोले हाँ, द रिव्यूज वर नॉट गुड। मैंने कहा तो रिव्यूज भेज तो दीजिए, कम से कम पता तो चल जाए हमें क्या लिखा है उसमें। तो कभी रिव्यू कराया हो तो भेजें, आज तक नहीं भेजे उन्होंने। ठीक है। तो डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स जो होती है वो केवल अ, इलाहाबाद में होती हो ऐसा नहीं है, सभी जगह होती है। ठीक है। वो आर्टिकल मैंने एज इट इज वेबसाइट पे डाल दिया, एकेडमिया पे। तो पड़ा हुआ है वर्ड फाइल में, एज इट इज पड़ा हुआ वो आर्टिकल। एसी वार्ड का कल हम जिक्र कर रहे थे। एसी वार्ड के आर्म्स एंड द मैन एडिशन में वो कैंडिडा में वो आर्टिकल बिब्लियोग्राफी में जो 4 आर्टिकल कुल उन्होंने लिखे हैं वहां, दैट आर्टिकल इज वन ऑफ देम। अब वो आर्टिकल लोग बहुत देखते चले जा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको इतना ज्यादा क्यों देख रहे हैं लोग। तब फिर किसी ने कहा कि सर आपका कोई आर्टिकल एकेडमिया पे है क्या? मैंने कहा कई है। नहीं, कोई कैंडिडा पे है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि नहीं, वो एक किताब में उसका बिब्लियोग्राफी में जिक्र है। मैं कौन सी किताब है? तो वो कैंडिडा एडिशन जो है उसमें पड़ा हुआ है आर्टिकल। ठीक है। तो यदि आर्टिकल में कुछ गुण है तो कोई ना कोई उसको देख ही लेगा। वो आर्टिकल मेरे कुलीग ने नहीं छापा तो उससे उस आर्टिकल की वैल्यू कोई कम हो गई? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। Yes, जी, 1 बजने वाला है तो yes. Any other questions from participant side? If there is any other query, we can have it right now. I guess there is no query then. Okay, so may I request all the participants to switch on the cameras for a moment, please? All the participants, please switch on their cameras. अरे भैया, मेरा वो दे दो जरा, टी शर्ट। May I request all the participants to please switch on their cameras for a moment, please? Right. All right, so that's all for this session. Thank you so much, sir. Sushil sir, we could not see you here. Sir, are you here in the meeting? I was trying to dress up properly for a photograph. Okay, okay, all right, all right. All right. Okay. Is that fine? Yes, sir. Absolutely. Right. Okay, so thank you so much once again, sir, for this session full of knowledge and enlightenment. And thank you all the participants. We'll see you again tomorrow at 11 a.m. And thank you, sir, for your valuable sessions. So tomorrow we are going to have another second speaker for this FGP. But Sushil sir will have you once again on the valedictory program. We'll have you once again, sir, with one more Okay. topic for discussion.
Okay, so first the lecture will take place, then the valedictory will take place, or first the Yes, valedictory sir. will take place, then the lecture will take place. No, sir. First, we'll have the lecture, and then we will have the validity program. That Okay, lecture okay. maybe we'll have a short lecture around 45 minutes to 1 hour, and then we'll have our validity program, sir. So that means I will have to stick to the schedule. I generally overshoot. So Anyway, we can manage. So there's no issue. We will manage. okay, okay then. Thank you very much. Thank you, Okay, Dr. Singh. okay. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, ma'am.